Hello, guys. Welcome back to our continuous learning. How are you doing today? I am good and I hope you are doing great. In today's session, we are going to learn modern techniques to get hired. What are the different modern techniques to get hired? After completion of graduation, fresh graduates face lot of challenges to get hired. In today's session, I am going to focus what are the different modern techniques to get hired quickly. In today's session, we are going to learn and discuss about all modern techniques which are really needed to get hired. Number one is traditional versus modern job search techniques. Number second, tips to write modern resume. Number third, building personal brand on social media. Number four, networking with people. Number fifth, applying for internships. Number six, preparing profiles on different job portals. Number seventh, use of AI tools for interview preparation. Then let's start. Freshers face lot of challenges after completion of their graduation when they entered into the corporate to search jobs. What are the major challenges they face in initial starting of their career? Of experience. Number two, limited networking opportunities. Number third, confuse how to write a good resume. What skills should mention or what not. What is a good format, what layout they should use. Number fourth is difficulty in showcasing skills or experience. What set of skills they should mention in their resume. These are most commonly challenges which are faced by most of the freshers. Let's discuss about the first topic, traditional versus modern job search techniques. What are the different modern techniques to search a job and what are the traditional methods? I know most of the people are not aware how to write a good resume and what are the modern techniques. What are the modern techniques which we should use to find a job or search a job? People is still using the traditional methods to find a job. Most of the freshers are not aware about what are the different modern techniques to find a job. So इस टॉपिक में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द ट्रेडिशनल जॉब सर्च टेक्निक्स. ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं जॉब सर्च करने के. स्टिल रिमेंबर माय करियर जर्नी. व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर जर्नी आई यूज्ड द ट्रेडिशनल मेथड्स because that time all these the modern techniques were not available. I remember the incident how I prepared my first resume and then how I started applying for jobs. What are the traditional job search techniques? जॉब सर्च करने के पुराने तरीके मेथड्स कौन कौन से हैं. न्यूज़पेपर एड्स. पहले हम न्यूज़पेपर एड्स को एक जरिया होता था जॉब फाइंड करने का, राइट. क्लासीफाइड्स. देयर इज ए कॉलम इन न्यूज़पेपर्स. स्टिल देयर इज ए कॉलम इन न्यूज़पेपर्स कंप्लीटली फॉर क्लासीफाइड्स, राइट, जिसमें कि जॉब्स का भी एक कॉलम होता है. आई रिमेंबर माई करियर जर्नी इन टाइम्स ऑफ इंडिया. एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे देयर इज ए जॉब कॉलम इन टाइम्स ऑफ इंडिया. एवरी वेडनेसडे और सैटरडे का मुझे इंतज़ार होता था and I noted down all the job vacancies, and one by one I go to STD booth and call them one by one. So दोनों तरीके कौन कौन से हो गए. Finding a job vacancy from a newspaper, then cold calling. So both are traditional ways to find a job.
After that, I started distributing my resume door to door to the companies. Job search fairs. I attended फर्स्ट जॉब फेयर इन प्रगति मैदान दिल्ली. वहाँ पर भी मैं बहुत सारी कंपनीज आई थी. आई गेव माई रिज्यूमे टू ईच एंड एवरी वन, बट आज तक उनका कोई कॉल नहीं आया. अटेंडिंग ऑफलाइन इवेंट्स जो अटेंड होती हैं उसमें ऑफलाइन इवेंट्स को अटेंड करना, देन उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करना, उनको अपना रिज्यूमे देना. ऑल दीज आर ट्रेडिशनल वेज टू फाइंड ए जॉब. बट ये आज के टाइम में ये काम नहीं करते हैं. ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं करते हैं, काम करते हैं. ऑफलाइन भी काम करते हैं, अभी भी इनको यूज़ करते हैं लोग. बट दिस इज़ नॉट ए मोस्ट इफेक्टिव वे टू फाइंड ए जॉब in today's market, because we are living in a digital era. There are various modern techniques to find a job and get hired. So what are the different modern techniques to find a job? Let's learn about it. What are the different modern techniques to find a job? Number one, effective use of LinkedIn. LinkedIn is a professional networking website or platform which is purely used by professionals for their businesses and jobs purpose. And effective use of job portals. There are various job portals. Naukri.com is one of the India's largest job portal. Then Indeed is globally job search portal. So we can use effectively these portals, building personal brand on social media. This is a digital era and we all are using Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, all these social media platforms. Then why should we not utilize these platforms to find a job? This is a good way. Showcase your abilities, your expertise, your skill sets over there, and we can easily build our personal brand over there. In upcoming years, no one is going to ask for a resume. These platforms work like your identity, your showcase, your resume. एक रिज्यूम से ज़्यादा आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता लग जाता है लोगों को what kind of person you are, what you do, what you like, what you dislike, what are your interest areas, why companies will look at your resume. जब रिज्यूमे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी पब्लिकली अवेलेबल है, why they will ask you for your resume? Okay, you can utilize these platforms for good purpose also. Networking with people. Social media के through we can connect all over the world. We can join different groups based on our interest. Facebook, LinkedIn, Instagram or Twitter. Applying for internships. One of the most important factor to find a job. जब आपकी ग्रेजुएशन चल रही होती है ना, बीटेक, एमसीए, ड्यूरिंग दैट टाइम you must start building your personal brand as well as you should start applying for internships. बट हम करते क्या है, जब हमारा लास्ट ईयर होता है तब हम भागते फिरते हैं, कहाँ से इंटर्नशिप करूँ, कैसे करूँ, हियर एंड देयर. नो, दिस इज नॉट द राइट वे. The right way is that from the first year, you should start thinking how to build my personal brand. You should be active on LinkedIn. Create your profile. Mention your skill sets. Mention your skill set in which you are good at, and then slowly start posting contents related to your expertise. आपने कुछ लर्न किया, शेयर इट विद अदर्स. देयर इज नो हार्म टू शेयर योर नॉलेज विद अदर्स. इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड यू आर गिविंग टू द सोसाइटी. एंड आफ्टर योर ग्रेजुएशन, when you complete your BTech or MCA, they will start interacting to you because you are active on LinkedIn and you are participating and contributing a lot in your network. अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, डोंट वरी, यू कैन फाइंड ए गुड जॉब yourself only. Second is tips to write
मॉडर्न रिज्यूमे। द टिप्स टू राइट ए मॉडर्न रिज्यूम। एक अच्छा रिज्यूम, मॉडर्न रिज्यूम तैयार करने के लिए, लिखने के लिए कौन कौन से टिप्स हैं। योर रिज्यूमे इज योर आइडेंटिटी। Your resume speaks about you, yourself, what kind of person you are, and lot of assumptions a interviewer makes based on your resume. So that's why you have to understand how to prepare a good resume. What should mention in your resume, what should not, क्या उसमें लिखना है, क्या नहीं लिखना है, how to write, कैसे उसको यूटिलाइज करना है. If I talk about the basic layout of your resume, how to utilize that, it's depend on you. Here you can mention your contact details, your name, your email ID, your phone number, your address. अब इसको आप इधर भी रख सकते हो, मिडिल में भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो. नेक्स्ट सेक्शन होना चाहिए इसमें कैरियर समरी. यू आर ए फ्रेशर जस्ट स्टार्टिंग, देन this section could have your career goals, what you want to become, but it should not more than 3 to 4 lines. Number 3 is set of skills. You should mention only the skills in which you are good at. जो आपको आता है वही मेंशन करना चाहिए. Otherwise the interviewer can put any question based on whatever you mention. अगर आपको कुछ आता ही नहीं है और आपने मेंशन कर दिया, देन अननेसेसरी देयर कुड बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर यू. नंबर 4 इज योर वर्क एक्सपीरियंस. कौन कौन सी कंपनीज में आपने काम किया है, एंड इट शुड बी इन ए रिवर्स ऑर्डर, द मोस्ट रिसेंट फर्स्ट. जो आपकी सबसे करंट कंपनी हो पहले, उसके बाद में जो जिन जिन कंपनियों में आपने काम किया है. नंबर 5 इज योर क्वालिफिकेशन. और एजुकेशन. Number 6 is optional. You can have this to showcase your other certifications. Your resume should be neat and clear and error free. There should be not a single spelling mistake in your resume. क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, एंड इट्स फैक्ट, इंटरव्यूअर हर चीज़ पर ध्यान देता है. मैं बहुत सारे रिज्यूम्स को इसलिए रिजेक्ट कर देता, शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करता था. क्यों? बेस्ड ऑन देयर एरर मिस्टेक्स, और जिनकी फॉर्मेटिंग ही सही नहीं है. ओके, सो दीज आर स्मॉल थिंग्स बट इम्पैक्ट अलॉट. बहुत सारे रिज्यूम से ही मुझे पता लग जाता था कि ये बंदा किस टाइप का है. अगर किसी ने अपना रिज्यूमे बहुत अच्छा सा बना रखा है, वेल फॉर्मेटेड, नीट एंड क्लीन, कोई एरर नहीं है, इससे क्या पता लगता है? इससे उसकी पर्सनैलिटी का पता लग रहा है कि किस टाइप का बंदा है, उसको क्या पसंद है. उसको ये नहीं कि ठीक है चल जाएगा, रहने दो, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो चलने दो, या फॉर्मेटिंग गड़बड़ है तो रहने दो, चल जाएगा. इट मीन्स वो बंदा थोड़ा लेजी टाइप है. ओके, इट्स नॉट कॉन्शियस अबाउट परफेक्शन एंड गुड थिंग्स. तो इससे ये पता लगता है. तो इसके बेसिस पर भी बहुत सारे रिज्यूम्स को फर्स्ट उसमें शॉर्ट लिस्ट करते हैं. पहले जो HR देता है रिज्यूम्स naukri.com से, उनसे निकाल कर शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं. जब तो जो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए रिज्यूम्स आते हैं ना, उनको बहुत सारे रिज्यूम्स को मैं देकर ही रिजेक्ट कर देता था. और इट्स नॉट अबाउट मी, ईच एंड एवरी इंटरव्यूअर डू द सेम. योर रिज्यूमे शुड नॉट बी मोर देन 2 पेजेस. बट हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग. जो हमें नहीं आती है उसको भी हम डालने की कोशिश करते हैं. जितने प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया उन सबको हम डालने की कोशिश करते हैं. भाई, क्योंकि इंटरव्यू के पास में इतना टाइम कहाँ है कि वो आपको एक एक चीज़ को पढ़ेगा डिटेल में. वो सिर्फ हाइलाइट्स देखता है कि आपकी स्किल सेट क्या है, आपने किस टाइप का काम किया हुआ है. अगर आपने बहुत सारा काम किया है, इट्स फाइन. यू मस्ट हाईलाइट ओनली दोज सेक्शंस इन विच यू आर रियली गुड एट. जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आप अच्छे हो, उन्हीं चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है इन योर रिज्यूमे. नंबर 3 इज़ बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड ऑन सोशल मीडिया. इसके बारे में हमने
थोड़ा डिस्कस ऊपर कर चुके हैं, लेट्स डिस्कस मोर इन डिटेल। सोशल मीडिया हैज़ ए पावर। आज से 20 साल पहले हमें किसी एक छोटी सी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। इन दीज डेज easily you can reach people all over the world, isn't it? So I would say social media has a power, but we are not utilizing it in a proper way. हम इसको जस्ट कैसे यूज कर रहे हैं? जस्ट फॉर एंजॉय पर्पस, जस्ट फॉर वॉचिंग रील्स भी देखो, बट स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग द सोशल मीडिया गुड पर्पस। अभी जॉब भी आपको जो पुराने तरीके हैं ना, ओल्ड मेथड से, उनसे जॉब नहीं मिलता। उसके लिए भी नाउ द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस हैज स्टार्टेड to shortlisting the people based on your social media profiles. And to find a job or search a job, LinkedIn optimization is one of the important. LinkedIn को अगर आप अच्छे से यूज करना सीख गए ना, you can find a job easily. आपको जॉब पोर्टल्स की भी जरूरत नहीं है। In these days, LinkedIn is a powerful tool और प्लेटफॉर्म। उसको यूज करने के लिए ना आपको फ्रॉम द डे वन यू मस्ट स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन। जब आपका फर्स्ट ईयर ही चल रहा है ना बीटेक में, एमसीए में, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, फ्रॉम द डे वन, स्टार्ट क्रिएट योर प्रोफाइल एंड स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन इन बेस्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड वे। उनको यूज करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको रोजाना देख रहे हो। स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन कंटेंट बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टाइज, योर नॉलेज। जो आपने कॉलेज में पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसको शेयर करो। स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल्स। कोई भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख सकते हो। रोजाना मत लिखो, बट वंस ए वीक यू कैन स्टार्ट, बट वंस ए वीक यू कैन डू, इजंट इट? इससे क्या होगा? इससे आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा ऑन सोशल मीडिया। कंपनीज विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू कि अगर आप एक्टिव रह रहे हो, वंस ए वीक और ट्वाइस ए वीक आप पोस्ट भी डाल रहे हो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एरिया। अगर आप कोडिंग में अच्छे हो तो आप कोडिंग से रिलेटेड डालो, अगर आप फ्रंट एंड में अच्छे हो तो फ्रंट एंड से रिलेटेड डालो, अगर आप बैक एंड में अच्छे हो तो बैक एंड से रिलेटेड डालो, अगर डीएसए में अच्छे हो तो डीएसए रिलेटेड डालो, राइट? उससे यू विल स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन कनेक्शंस एंड slowly the companies will start connecting with you. आपको जाने की जरूरत नहीं है, कंपनीज आपसे ऑटोमेटिक कनेक्ट होने लग जाएगी। एंड यू कैन अप्रोच within the first year. In the first year you can approach the companies for internship. पहले साल से ही आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो। In 4 years you can get a certification at least 4 companies. अगर आप साल में एक बार भी इंटर्नशिप करते हो तो you can get 4. Build your confidence. You can learn how to work in corporate. You can start building your own connections. Is this not a powerful to start your career journey, right? So LinkedIn is a powerful tool. Start using in a best way. Second, GitHub. अगर आपको कोडिंग में जाना है, GitHub is one of the most important tool. Solve a problem and create repositories, your own public repositories on GitHub. Solve a problem and upload it on your GitHub account and start sharing whatever you have done. अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पर्सनल ब्रांड कि आपने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो, आप कितने प्रोजेक्ट आपने कर चुके हो। इंटर्नशिप आपने कोई प्रोजेक्ट किया, उसको आप अपने गिटहब पर पब्लिकली रिपोजिटरी बनाकर डाल सकते हो। इट्स ए पावरफुल। डू नॉट वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ योर बीटेक और एमसीए। उसका वेट क्यों करना कि वो जब मेरा एमसीए और बीटेक हो जाएगा तभी मैं गिटहब अकाउंट बनाऊंगा, तभी मैं लिंक्डइन प्रोफाइल बनाऊंगा, तभी मैं सोशल मीडिया ब्रांड बनाऊंगा। नो,
स्टार्ट फ्रॉम योर ड्यूरिंग योर कॉलेज। जब आपने ज्वाइन कर लिया ना बीटेक में, तब से ही स्टार्ट कर दो इन चीज़ों को। एंड आई बेट यू विल रिमेंबर मी। स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग यूट्यूब। YouTube is also a good social media platform to build your confidence। मैं तो कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर से ही create your own channel। What I observed, to build a confidence level, YouTube is one of the best platform। अपना चैनल बनाओ, इसके एक नहीं कई सारे फायदे हैं। नंबर 1, you will build your confidence level। नंबर 2, you will share good things with your family friends। आपके नॉलेज को आप शेयर करोगे औरों के साथ में। नंबर 3, आफ्टर फ्यू ईयर्स यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी। इट कुड बी ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। एक सोर्स ऑफ इनकम आपका बिल्ड हो जाएगा आफ्टर 3 to 4 years। एंड टू गेट ए हायर्ड क्विकली, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू अलॉट। क्योंकि जब आप उस पर लर्निंग्स शेयर कर रहे हो, उस टाइप की वीडियोस बना रहे हो, तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा फॉर योर जॉब और योर कैरियर। नो, देयर वुड बी ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर कैरियर। जब लोग, कंपनीज कोई भी हायर करने से पहले, इवन you can mention your LinkedIn profile, you can mention your LinkedIn profile और YouTube channel in your resume, जिससे कि आप जहाँ भी अपने रिज्यूम शेयर कर रहे हो तो वो आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे कि ये किस टाइप का बंदा है, क्या शेयर करता है। अगर वो अपने नॉलेज को आप पहले से ही उनके साथ में शेयर कर रहे हो, पब्लिक के साथ में, दे कैन ट्रस्ट ऑन यू। उनका ट्रस्ट तो आप में पहले ही आपका रिज्यूमे देख कर ही बिल्ड हो जाएगा कि दिस इज़ द राइट पर्सन टू हायर, टू गेट हायर। यूट्यूब को आप हल्के में मत लो कि यूट्यूब को तो जिनके पास काम नहीं होता है वही चैनल बनाते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यूट्यूब चैनल, क्रिएटिंग ए यूट्यूब चैनल, मेंटेनिंग ए यूट्यूब चैनल इज़ नॉट ए बैड थिंग, इट्स ए गुड थिंग फॉर योर कैरियर। एंड इन आफ्टर फ्यू ईयर्स ऐसा भी हो सकता है ये आपको इतनी इनकम कर दे कि आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन अदर सोशल मीडियाज़ लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, you can use all these social platforms as well for your personal brand। अगर आपने लिंक्डइन पे कोई पोस्ट कंटेंट बनाया उसको शेयर कर सकते हो आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर भी। एंड स्लोली यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन कनेक्शंस, ज्वाइन सिमिलर ग्रुप्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क। तो इससे क्या होगा कि स्लोली यू विल स्टार्ट नेटवर्किंग विद पीपल। नेटवर्किंग हैज़ ए पावर। A good networking means a lot। Number 4 is networking with people। If you really want to build a good foundation of your career for your life, networking with people is really important। It doesn't matter you are a student, you are a working professional, or you are a entrepreneur। Networking with people works for everyone। ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे लोगों से नहीं मिलना चाहिए, मुझे क्या मतलब, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है बस। नो, आपका अच्छा करियर तभी बनेगा जब आप लोगों से इंटरेक्ट करना सीखोगे। क्योंकि व्हेन यू विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल, यू विल बिल्ड ए कॉन्फिडेंस, यू विल लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड इट विल, ये आपके काम आएगा in your interviews, when you face your interviews। If you have a good confidence and you know how to confidently interact with people, then you can easily crack your interview। तो नेटवर्किंग के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? ज्वाइन ऑफलाइन इवेंट्स, बहुत सारे ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, अटेंड ऑफलाइन इवेंट्स, वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं, मिलो उनसे,
talk to them, share your contact details with each and everyone, build your connections. Number second, ऑनलाइन इवेंट्स, अटेंड ऑनलाइन इवेंट्स, बहुत सारी इवेंट्स वेबिनार्स होती रहती हैं, ज्वाइन ऑनलाइन इवेंट्स। देन ज्वाइन ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, ग्रुप्स होते हैं ऑनलाइन, ज्वाइन देम एंड स्टार्ट डिस्कसिंग। दीज ऑल हेल्प्स यू ए गुड फाउंडेशन फॉर योर करियर। अटेंड वेबिनार्स, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट। वेबिनार्स के बारे में हम क्या सोचते हैं कि वेबिनार नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, ये पैसे लूट लेते हैं। नो, इट्स मिडिल क्लास मेंटेलिटी। रिमूव दिस मेंटेलिटी। You don't know a single master class how much efforts it take। एक सिंगल जो उनकी मास्टर क्लास होती है ना वेबिनार की, उसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है। दे पुट देयर ऑल एफर्ट्स, देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क देयर, दे पुट ऑल देयर हार्ड वर्क इन दैट मास्टर क्लास, और वो आपको फ्री दे रहा है। इवन इफ दे आर चार्जिंग फॉर 99 रुपीज़ or 299 rupees or 399 rupees or 500 499 rupees, it's not a large amount, isn't it? 400-500 रुपये क्या वैल्यू रखते हैं इस ज़माने में। एक बार आप मार्केट गए, आप 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर आते, कई सौ खर्च कर देते हो आप। बट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, दिस इज रियली हेल्प्स to build your career foundation and build your good foundation of your life। क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट पे खर्च करना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ अगर आप खाने पीने पे खर्च कर रहे हो, यू कैन सेव मनी फ्रॉम देयर एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आपको रियली आपको अच्छा करियर बनाना है ना, अच्छी लाइफ जीनी है, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। लर्निंग्स, बुक खरीदो, डिफरेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन करो, वेबिनार्स अटेंड करो, डिफरेंट इवेंट्स अटेंड करो। फ्री है तो दैट्स गुड। अगर मिनिमल चार्जेस में अगर आपको बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, ओके, स्किल्स मिल रही है, जिस देयर इज़ नो हार्म टू अटेंड दीज वेबिनार्स, राइट। जिस एरिया में आप लेक कर रहे हो, कोडिंग में, DSA में, ओके, फुल स्टैक डेवलपमेंट में, डेटाबेस में, कहीं पर भी जिस भी स्किल सेट की आपको ज़रूरत है, ज्वाइन रिलेटेड वेबिनार्स और इवेंट्स। नंबर 5 इज अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू फाइंड ए जॉब और टू गेट हायर्ड क्विकली। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। और इंटर्नशिप के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हो? जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल brand, personal social media presence first. For that you have to create your social media profile, your LinkedIn profile, your GitHub profile first, and then start preparing yourself for accordingly. Then set your goals। आप अपने गोल सेट करो कि इस साल मुझे किस स्किल सेट पर काम करना है और किस स्किल सेट के बेस पर मुझे किस किस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। ओके, जैसे मान लो आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है, इस साल आपको कोडिंग पे काम करना है, then accordingly start working on your skill set, build your profile on LinkedIn, mention your expertise, your skill sets in your profile, and start reaching out to the companies। जो कंपनी आपकी प्रोफाइल देखेंगी, they will find you the suitable candidate for the internship, and they can hire you for 1 month, 3 month or 6 month internship। You can also start searching the related companies। जब आपके कनेक्शन बन जाएंगे, you can directly approach the companies। During your
बीटेक और एमसीए, अगर आपने 2 से 3 इंटर्नशिप भी कर ली ना अच्छे से, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन, either they directly call you, they directly provide you an offer letter, or if not, another good job offer from other companies, because this will build your confidence level, your skill set. Number 6 is preparing profiles on different job portals. Most of the people only think about this method only. They use only this method to find a job or to get hired, isn't it? सब लोग सिर्फ एक ही मेथड को हम जानते हैं कि सिर्फ जॉब पोर्टल्स पर हमें अपनी प्रोफाइल बना लेनी है, naukri.com पर, indeed.com पर, उसके बाद में बस उसी के भरोसे हम बैठे रहते हैं. इट्स नॉट वर्क लाइक दैट. जो मैंने अभी तक आपको सारे मेथड्स बताए थे ना, दे आर मोस्ट पावरफुल मेथड्स टू फाइंड एंड टू गेट हायर्ड क्विकली. ठीक है, ये भी काम करता है. आई एम नॉट सेइंग लाइक नॉट वर्क्स. इट वर्क्स but not that effective way what it should be. एक जूनियर लेवल की जॉब सर्च करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर हायर लेवल की हम जॉब की बात करता हूँ ना मैं, लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. अगर लीडरशिप स्किल्स की बात करते हैं, लीडरशिप प्रोफाइल्स की बात करते हैं हम, तो सब लोग naukri.com पे नहीं आते. दे टेक द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऑफ लिंक्डइन एंड फाइंड द लीडरशिप रोल्स और देयर. ज़्यादातर जो लीडरशिप की जो प्रोफाइल्स होती हैं वो नौकरी और इन पर नहीं मिलती है, इसलिए सभी कंपनीज लिंक्डइन को यूज करती है, प्रीफर करती है. इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर करियर देन यू कैन क्रिएट योर प्रोफाइल. एक अच्छी से रिज्यूम बनाओ, जो कि मैंने टिप्स बताई थी. उसके बाद में ऑन ऑल दी प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि इंडिया के अंदर हमारे इंडिया naukri.com इज़ वाइडली यूज्ड, इंडीड इज़ ग्लोबली यूज्ड, then Monster, and then there are lot of other platforms there. तो ऐसा नहीं है कि उनसे भी आपको कॉल्स आती हैं. यू कैन फाइंड ए जॉब यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स, बट दीज आर नॉट मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स कि आप इन्हीं के भरोसे बैठे रहो. सिर्फ टू फाइंड ए गुड जॉब और टू बिल्ड ए गुड करियर you have to use the other methods which I mentioned earlier. Number 7th is effective use of AI tools. How we can effectively use AI tools to get hired quickly. In these days, there are various AI tools available in market. You can utilize the AI tools to get hired quickly. Suppose करो, ChatGPT is a common platform AI tool. If you start using ChatGPT effectively, you can learn a lot. अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती, you can ask ChatGPT. Suppose how to build a good resume, modern resume. You can ask ChatGPT how to write a good resume, how to prepare for an interview. इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है, यू कैन आस्क फ्रॉम ChatGPT. अगर आपको नहीं पता कि हाउ टू इफेक्टिवली यूज जॉब पोर्टल्स, यू कैन आस्क फ्रॉम ChatGPT. ChatGPT टेल यू हाउ टू इफेक्टिवली यूज द जॉब पोर्टल्स. क्योंकि जॉब पोर्टल्स में भी क्या होता है नहीं कि आपने प्रोफाइल बनाई और अपलोड कर दिया. इट नॉट वर्क्स लाइक दैट. उस पर भी आपको उनकी एल्गोरिदम्स होती हैं, वो भी आपको डेली बेसिस पर आपको अपना रिज्यूम या कोई एक्टिविटी करनी होती है जिससे कि आपका रिज्यूम है उनके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सर्च में ऊपर आ जाए. टू लर्न अबाउट द पोर्टल एंड देयर एल्गोरिदम्स, यू कैन आस्क फ्रॉम ChatGPT अबाउट द रिलेटेड जॉब पोर्टल. यू कैन क्रिएट डिफरेंट जॉब अलर्ट्स ऑन द जॉब पोर्टल्स, जिससे कि आपको आपसे रिलेटेड जो भी कोई वैकेंसी आएगी, यू कैन गेट नोटिफिकेशन अलर्ट. कैसे काम करते हैं, सबकी एल्गोरिदम्स, वे ऑफ वर्किंग अलग है, सबके एल्गोरिदम्स अलग अलग हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर एल्गोरिदम्स अकॉर्डिंगली, यू हैव टू यूज दैम. इफ यू डोंट नो अबाउट हाउ टू यूज इफेक्टिवली, देन आस्क ChatGPT. ChatGPT तो सब कुछ बताता है, राइट? इट्स योर पर्सनल असिस्टेंट. हाउ टू build my personal brand, you can ask ChatGPT. Okay.
then how to apply for internships. ChatGPT can help you to get start each and everything, but उसके लिए ना you have to take action.